Hello students, uh, right now as you all have been notified that you are going to get promoted without giving any examinations, and most probably your next session has been started. Just because of that we are preparing video lectures. So today we are going to do our first chapter of English, which is for class 10th, from the book First Flight, and the chapter is A Letter to God. And this chapter has been written by G.L. Fuentes, and the theme of this chapter is uh, faith. They say faith can move mountains. And for example, if you say if you are interested in watching movies, and if you have watched Om Shanti Om, so there is a famous dialogue in that movie. If you want something from the bottom of your heart, the whole universe conspires to make it happen. So this is the importance of faith. In the same way, the story highlights immense power in man's innocence and faith in God. So let's get started. Okay, now let's talk about the main characters of the chapter. The main character is Lencho. Lencho is a man of limited means and earned his living by farming his fields. So Lencho, who is the protagonist of this story, and he earned his living by doing farming. So let's begin with the chapter. A Letter to God. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height one could see the river and the field of a ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest. So this is the house. You can see this house is alone. तो यहाँ पे इस वैली में सिर्फ एक हाउस है, sat on the crust in the sense at the top of the hill. From this height, anyone could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. तो यहाँ से आपको नीचे easily river दिख सकता है, और क्या है, यहाँ पे कॉर्न के फील्ड हैं, यानी कॉर्न इन द सेंस भुट्टे की जो खेती हुई है, तो इजीली उस हिल से आपको दिख सकता है. और यहाँ पे क्या फ्लावर जो हैं ऐसे डॉटेड हैं, और उससे जो फ्लावर्स लगे हुए हैं, इससे ये जाहिर होता है कि इस बार क्या होगी, इट प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. यानी इस बार ये जो डॉटेड फ्लावर्स है, इससे ये जाहिर होता है, ये प्रॉमिस करता है इससे कि इस बार फसल अच्छी होगी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर. डाउनपोर इन द सेंस बारिश, रेन. तो अभी सिर्फ जो अर्थ को जिस चीज़ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो क्या है, डाउनपोर, और एटलीस्ट अ शावर. अगर बहुत तेज़ बारिश ना हो तो बस थोड़ी सी फुहार ही हो जाए. थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंचो, हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली इन द सेंस क्लोजली, यानी बहुत अच्छे से. तो थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरी सुबह लेंचो जो अपने खेत को बहुत अच्छे से जानता था, तो वो क्या करता था, हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट. तो वो पूरी सुबह उसने कुछ नहीं किया, वो सिर्फ बैठ के आसमान की तरफ देख रहा था, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बार बार देख रहा था. उसको उम्मीद थी कि इधर ही से बारिश आएगी. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर. वुमेन, द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाइड, yes, God willing. The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, come for dinner. It was during the meal that just as now what there is one woman also, and probably you can say she is the wife of Lencho. So he shares that now he felt like they are going to get rain, and he shared this thing with his wife, and said now we are really going to get some water. And the woman who was preparing supper, in the sense evening meal, in the sense dinner. So the woman who was busy in preparing dinner replied, yes, it seems so, it is going to get rain. The older boys, there were boys, most probably the children of Lencho,
तो द वंस हु वर ओल्डर, जो बड़े थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो फील्ड में काम कर रहे थे, वाइल द स्मॉलर, जो छोटे बच्चे थे वो खेल रहे थे नियर द हाउस, घर के बगल में कहीं खेल रहे थे। अंटिल द वुमेन कॉल टू देम ऑल, जब तक कि उस वुमेन ने यानी लेंचो की वाइफ ने जब तक उनको आवाज नहीं लगाई, कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, और अभी ये मील के दौरान की ही बात है, तभी। So, as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall in the northeast. Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5." So, predicted, as he was stating in the morning, he has shared in the morning in the previous page we studied, he was sharing with his wife that they are going to get rain. So, as per his prediction, the big drops of rain began to fall in the northeast, and huge mountains of cloud could be seen approaching, or huge mountains of cloud easily देखे जा सकते थे. Their air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. और इस चीज को he was eagerly waiting for the rain. तो just for the sake of feeling the pleasure of rain, he went out so that he could feel the rain on his body. And when he returned, जब वो वापस आया, he exclaimed, "These aren't raindrops." ये खाली raindrops नहीं है falling from the sky. They are new coins. ये क्या है? New coins हैं. जो बड़े coins हैं वो 10-cent pieces हैं, and the little ones are 5. जो छोटे हैं वो 5 हैं. With a satisfied expression, he regarded the field of a ripe corn with its flowers draped in a curtain of rain. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstones began to fall. These truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. He was extremely satisfied. सारी चीज़ें, पूरी crop almost prepared. The only thing which it needed was the rain. अब तो बारिश भी हो गई, तो he was extremely satisfied for that कि अभी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी. पर अचानक से एक क्या हुआ, strong wind blow हुई, began to blow, and along with the rain के साथ ही साथ very large hailstones. लार्ज हेल स्टोन्स जिनको पता है वेल एंड फाइन, जिनको नहीं पता है आप नेक्स्ट स्लाइड में देख पाओगे कि हेल स्टोन क्या है. तो हेल स्टोन भी साथ में गिरने लगी. दीज ट्रूली डिड रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स. और ये तो क्या है, हेल स्टोन आपका क्या होता है, स्मॉल पीसेस ऑफ आइस जो कि बारिश के साथ आते हैं. तो ये बिल्कुल सिल्वर कॉइन्स में से रिजेंबल कर रहे थे. द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स. और ये जो फ्रोजन जो जमी हुई मोतियां हैं, इनको वो क्या करने, कलेक्ट करने गए. जैसे हेल स्टोन होता है तो कोई भी, जैसे वी ऑल डू, हम सभी जाते हैं इस चीज़ को कलेक्ट करते हैं ना, बचपन में आप लोगों ने भी किया होगा. इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. आई होप इट पासेस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. So अब क्या है, अब जब उसने देखा, लेंचो ने देखा कि बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, तो ही जस्ट सेंस्ड दैट इट इज़ गोइंग टू बी डेंजरस. तो ही बिकेम पैनिक स्ट्राइकन, एंड देन ही सेड कि इट इज़ गेटिंग बैड नाउ, अब तो बहुत बुरा हो रहा है. एंड वो ही सेड कि आई एक्सपेक्ट कि इट जस्ट पासेस क्विकली, पर ये बहुत जल्दी नहीं गुजरा. ऑलमोस्ट 1 घंटे तक क्या हुआ, हेल रेन बारिश होती रही. द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली द फील्ड वॉज वाइट. और जो गार्डन चारों तरफ, वो जहाँ से भी देख रहा था, सब तरफ वाइट दिख रहा था. और ऐसा वाइट दिख रहा था वैली में, गार्डन में, हिल साइड, कहीं भी सिर्फ वाइट दिख रहा था. और ऐसा लग रहा था जैसे कि नमक छीट दिया गया पूरे में, इतना वाइट था.
not a leaf remained on the trees. और जो ये small pieces of ice जो रेन के साथ गिरते हैं तो थोड़ा सा हेवी होता है, अगर बहुत तेजी से गिरे तो नुकसान होती है, बहुत ज़्यादा क्रॉप जो है उससे डिस्ट्रॉय होती है. तो एक भी लीफ नहीं बची थी ट्रीज पे. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts would." अब क्या है, टोटली जो फसल थी, जो कॉर्न थी, वो टोटली क्या हो गई, खराब हो गई. द फ्लावर्स वर गॉन, जो भी उसमें फ्लावर थे वो चले गए प्लांट से. और जो लेंचो का सोल था वो क्या हो गया, सैडनेस से फिल हो गया. अभी बहुत ज़्यादा सैडनेस हो गई. व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब पूरी आंधी तूफान जो रुक गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड एंड सेड, वो खड़ा हुआ फील्ड में, एंड सेड टू हिज सन्स, और अपने बेटों से उसने बोला कि अ प्लेग ऑफ लोकस वुड, यानी प्लेग ऑफ लोकस इन द सेंस, ये आप यहाँ पे ये देख सकते हैं, लोकस होता है एक आपका स्मॉल इंसेक्ट होता है, और ऐसे स्वॉर्म में आता है, ऐसे ग्रुप में आता है और अटैक करता है क्रॉप्स पे, जिसकी वजह से क्या होता है, क्रॉप आपकी पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है. तो ही सेड टू हिज सन्स कि अगर जो लोकस का अटैक हुआ है तब भी हमारे पास कुछ ना कुछ बच जाता, पर अभी तो हमारे पास हैव लेफ्ट मोर देन दिस. अगर लोकस अटैक करता तो इससे बहुत ज़्यादा हमारे पास बचा रहता. द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, और जो हेल आई, जो हेल स्टोन है, तो उसकी वजह से तो अभी कुछ भी नहीं बचा. दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, और इस ईयर तो हमारे पास कोई फसल नहीं होगी. द नाइट वॉज अ सॉरोफुल वन, और वो रात जो है बहुत दुख भरी थी. ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, और हमने इतना काम किया, हम इतनी मेहनत किए. यू नो, आपको कितने काम होते हैं फार्मर्स के पास, उनको सो करना होता है, देन उसमें वाटरिंग करनी होती है, बहुत मेहनत करना होता है. तो उन्होंने जितनी भी मेहनत की वो सारा क्या हो गया, सब वेस्ट हो गया. देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी ऑल गो हंग्री दिस ईयर. और वो रात में बहुत ज़्यादा सॉरोफुल थे, और अलॉन्ग विद दैट दे वर वरीड ऑल्सो. लेंचो वॉज एक्सट्रीमली वरीड, क्योंकि वो अब उसको लग रहा था कि अभी हम लोग, तो आप जानते होंगे फार्मर कंडीशन, कि एक फार्मर जो होता है वो ऑलमोस्ट पूरे ईयर काम करता है. अभी कभी वो उसको रीप करना होता है, कभी क्रॉप को कट करना होता है. तो उन लोगों ने बहुत काम किया, और एट द एंड ऑफ द डे जब आपका वो जो क्रॉप जब आप कट कर लेते हो, जब वो फाइनल वे में आ जाता है, कंज्यूमेबल हो जाता है, तो ही तो वो पे होता है. अदरवाइज जब अगर इस तरह से कोई वेदर जब आ जाती है, कोई क्लैमिटी आ जाती है, तो उसकी वजह से परेशानी होती है. वो इंटायरली जो फार्मर होते हैं उसी पे डिपेंडेंट होते हैं. तो ही सेड कि वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल हम लोग पूरे के पूरे भूखे ही रहेंगे. बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लव्ड in that who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from the God. लेकिन उन सभी के दिलों में, hearts of all who lived in that solitary in the sense alone, जो उस अकेले घर में, जो वो वैली पे अकेला घर था, उस अकेले घर में रहते थे मिडिल वैली के बीच में, देयर वाज अ सिंगल होप, एक होप थी उनको, एक उम्मीद थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. वो उम्मीद क्या थी, हेल्प फ्रॉम गॉड. डोंट बी सो अपसेट, even though this seems like a total loss, remember no one dies of hunger. तो उसने बोला, लेंचो ने बोला कि ऐसा एकदम इतना अपसेट मत हो, हालांकि हम सारी चीज़ें पूरा टोटली लॉस हो गया है, लेकिन याद रखना कि कभी भी कोई भी भूखा नहीं मरता. दैट्स व्हाट दे से, ऐसा कहा जाता है, मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि कभी भी कोई भूख से नहीं मरता. नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरता. All through the night, Lencho thought only of his one hope, the help of God, whose eyes, as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience. Lencho was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. The following Sunday, at daybreak, he began to write a letter, which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. ऑल नाइट वो यही सब सोचता रहा कि अब क्या होगा. वो सारी चीज़ें दूर दूर तक जो भी हो सकता है कि क्या क्या चीज़ें वो सोचता रहा. ही वॉज लाइक, आपके साथ कभी इस तरह का लॉस हो तो यू विल बिकम, एनीवन विल बिकम रेस्टलेस. तो ही वॉज रेस्टलेस एट द मोमेंट. और लेंचो वॉज, दो ही यूज टू वर्क लाइक एन एनिमल, वो जानवरों की तरह काम करता था. एंड ऑक्स ऑफ अ मैन का मतलब क्या है, ही वॉज
वो जानवरों की तरह काम करता था, मतलब एकदम जैसे बैल आपके होते हैं बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो ही वो बहुत ज़्यादा काम करता था अपने फील्ड्स में, लेकिन फिर भी उसको ही न्यू हाउ टू राइट। द फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, और अगले संडे को जो भी ये नेक्स्ट संडे आया, फिर वो भी सुबह होते ही वो उसने लिखना शुरू कर दिया, राइट अ लेटर विच, और वो उस लेटर को वो खुद ही टाउन लेके जाएगा और उसको मेल कर देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड। और ये क्या था? ये था गॉड को लेटर था। गॉड, ही रोट, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. तो क्या है? गॉड, उसने लिखना शुरू किया, इसने लिखना ही ऐसे शुरू किया। गॉड, उसने लिखा, अगर आप मुझे, मेरी और मेरे फैमिली की अगर हेल्प नहीं करेंगे तो वी विल ऑल गो हंग्री, हम पूरे साल इस बार भूखे रहेंगे। आई नीड 100 पेसोज। अब पेसोज क्या है? पेसोज जो है करेंसी है जो कि मैक्सिकन कंट्रीज में यूज होती है। तो ही सेड इन ऑर्डर टू सो, हमको 100 पेसोज चाहिए। उसने गॉड से लिखा कि उसको कितने पैसे चाहिए? 100 पेसोज चाहिए। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे अपने दोबारा से अपने फील्ड को क्या करना है? सो करना है, उसमें फिर से खेती करनी है। और एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और जब तक कि दोबारा से उसमें सो करेंगे और जब तक दोबारा से क्रॉप्स नहीं आ गए तब तक तो हम कुछ ना कुछ खाएंगे, बिकॉज द हेल स्टॉर्म ही रोट। और आगे उसने पूरी कहानी बताई कि हेल स्टॉर्म आया, फिर कैसे कैसे उसने एक बार सो किया था तो उसके फील्ड के साथ क्या क्या ट्रेजेडी हो गई। ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, पुट द लेटर इनसाइड एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन। At the post office, he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. और उसने लेटर लिखा, गॉड को लेटर लिख दिया, एनवेलप पे भी लिख दिया टू गॉड, और लेटर को उसमें इनसाइड लिखा, इनसाइड डाला, एनवेलप के अंदर डाला। और स्टिल ट्रबल्ड, एंड अभी भी लिख भी दिया था और परेशान था वो, टाउन की तरफ गया और पोस्ट ऑफिस गया, वहाँ पे उसने स्टैंप लगाया और लेटर को मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, डाल दिया। वन ऑफ द The postmaster was an amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk, commented, "What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter, starting up a correspondence with God." जो पोस्टमास्टर था उसने जब ये चीज़ देखी तो उसको भी बहुत हंसी आई, ब्रोक आउट लाफिंग, यानी बहुत अचानक से बहुत तेज़ हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली फिर जल्दी ही टर्न सीरियस, और जल्दी ही सीरियस हो गया और उसने उस लेटर को डेस्क पे रखा और कमेंट किया, व्हाट फेथ, क्या यकीन है, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, और काश कि मेरे पास भी, हम कई बार होता है कि हम इतना ज़्यादा यकीन नहीं रखते हैं, तो उसने कहा कि काश कि मेरे पास भी उस इंसान जैसा फेथ होता जिसने ये लेटर लिखा है। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विद गॉड, इतना कि हम गॉड से करस्पॉन्डेंस कर पाते हैं। करस्पॉन्डेंस क्या होता है? वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन जिसमें हम लेटर के थ्रू कम्युनिकेशन करते हैं, दैट सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन इज नोन एज करस्पॉन्डेंस। So, in order not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answered the letter. But when he opened it, it was evident that to answer it needed something more than goodwill, ink, and paper. So he didn't want to shake, he wanted, if the writer had the faith in God this much, so he as a good human being, the postmaster as a good human being wanted to keep the faith of that writer, so he wanted to answer that letter. But when he opened that letter, so it was manifest from that letter, it required to answer the letter which is written by the writer. He not only needed a goodwill यानी सिर्फ desire नहीं चाहिए थी, ink नहीं चाहिए था, paper नहीं चाहिए था, but along with that आपको क्या चाहिए था? और भी कुछ चाहिए था, उसके अलावा, इन चीज़ों के अलावा भी कुछ और चाहिए था। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन इन द सेंस डिसीजन, वो अपने अब डिसीजन पे कायम रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, he himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity.
तो उसने क्या किया, उसने अपने एम्प्लॉयज़ जो थे, उसमें क्या था, पैसे की डिमांड थी। आप जैसे प्रीवियस स्लाइड में आपने देखा था कि उसमें क्या, उसने 100 पैसोज़ की डिमांड की थी। तो उस डिमांड को फुलफिल करने के लिए भाई पैसा चाहिए, तो कोई भी एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए इतना सारा तो खुद नहीं देगा, तो उसने कलेक्ट किया, कुछ अपने एम्प्लॉयज़ से, कुछ अपने फ्रेंड्स से, और कुछ अपने सैलरी से भी दिया। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lencho, and with it a letter containing only a single word as signature God. अब ये उसने बहुत तरफ से ही ट्राई टू कलेक्ट द मनी, बट नो वन, अभी राइट नो एवरीबडी रन्स अ फैमिली, अभी हमारे पास है, आपके पास, हर किसी के पास फैमिली होती है, अपनी खुद की बहुत सारी नेसेसिटीज़ होती है, तो कोई भी इतना चैरिटी नहीं करता। तो सब ने अपने हिसाब से जो करना चाहते लोगों ने चैरिटी किया, पैसा दिया, बट जो पैसा कलेक्ट होके आया इट वॉज हाफ, मोर अ लिटिल मोर देन हाफ, यानी हाफ कितना हो गया, 100 पैसों की डिमांड थी, पैसों की डिमांड थी, अभी कितना है, हाफ हो गया 50, तो मोर देन 50, थोड़ा सा 50 से थोड़ा सा ज़्यादा था। उसने उन पैसों को एनवेलप में रखा और लेंचो के एड्रेस पे एड्रेस लिख दिया उसमें, और उसी के साथ एक लेटर लिखा जिसमें सिर्फ एक सिंगल वर्ड था एज सिग्नेचर, जिसमें सिर्फ सिग्नेचर था किसका, गॉड का। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. So फॉलोइंग संडे को जो नेक्स्ट कमिंग संडे था, उस संडे को जो लेंचो है वो यूजुअल हमेशा से थोड़ा सा पहले ही चला गया और पोस्ट ऑफिस, और उसने जाके पूछा कि क्या कोई लेटर है उसके लिए। तो पोस्टमैन ने खुद उसको लेटर हैंड किया, उसको दिया, एंड while the letter to him, while the postmaster experienced the contentment of a man who has, तो अब उसके बाद जो पोस्टमास्टर है, he was sitting on his desk and he was just trying to notice is the man who wrote the letter to God, either he is satisfied from the money or content with the money or not. लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज। तो लेंचो को, जैसा कि पोस्टमास्टर ने सोचा कि उसने बहुत अच्छा काम किया है और अचानक से लेंचो देखेगा तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगा, लेकिन लेंचो से ज़रा भी सरप्राइज शो नहीं हो रहा था उसके फेस से, और सीइंग द मनी मैन, पैसों को देख उसको बिल्कुल भी सरप्राइज ही नहीं लगा। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, इतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट था, बट ही बिकेम एंग्री, वो जल्दी ही गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब वो पैसा उसने काउंट किया तो गुस्सा हो गया। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। इतना ज़्यादा भरोसा था कि इसे कि गॉड डज नॉट मेक मिस्टेक, गॉड से तो गलती होती ही नहीं है, और ऐसा भी नहीं कि इफ़ आई हैव रिक्वेस्टेड समथिंग तो गॉड विल डिनाई टू इट, यानी हमने अगर कुछ किया, कुछ रिक्वेस्ट किया तो गॉड उसको देंगे ही देंगे। तो उसको ये क्या था, ये इसका इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस था कि वो एक्सपेक्ट कर रहा था कि गॉड से गलती नहीं हुई है और गॉड ने, हमने जितना रिक्वेस्ट किया उतना मिलेगा ही मिलेगा, फिर गलती कहाँ हुई। इमीडिएटली Lencho went up to the window to ask for paper and ink. On the public writing table he started to write, with much wrinkling on his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to. अब इमीडिएटली जल्दी ही उसने क्या किया, लेंचो वेंट अप टू द विंडो पे गया और उसने एक पेपर और इंक लिया और पब्लिक राइटिंग टेबल पे बैठ गया और वहाँ पे बैठ के लिखने लगा। ही स्टार्टेड राइटिंग, और रिंकलिंग यानी व्हेन यू आर, जब आप बहुत ज़्यादा एंग्शियस होते हो तो जो एक्सप्रेशन आता है आपके फेस पे, उस एक्सप्रेशन के साथ उसने लिखना शुरू किया और अपने आइडियाज़ को वो लिख रहा था। जब उसने वो फिनिश कर लिया लिखना, देन ही वेंट टू द विंडो पे वापस से गया, पोस्ट ऑफिस की विंडो पे, और बाय स्टैम्प, एक स्टैम्प खरीदा उसने, विच ही लिक्ड, उसने लिख किया अपने से अपने टंग से लिख किया उसने, एंड देन फिक्स टू फिर उसको क्या कर दिया उसने, फिक्स कर दिया। The envelope with a blow of fist, अब जैसे हम मुट्ठी से मार के किसे जैसे पहले से करते थे, तो उसने ब्लो ऑफ फिस्ट से उसको फिक्स कर दिया। And the moment the letter fell into the mail box,
The postmaster went to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are bunch of crooks, लेंचो। अब क्या हुआ, उसने वो चिट्ठी लिख दिया और उस लेटर में उसने क्या लिखा, जैसे ही वो उस मेल बॉक्स में वो लेटर गया, पोस्ट मास्टर गया, जल्दी से इसको खोला और उसमें लिखा था, गॉड, जो पैसे मैंने आपसे मांगे थे, आई आस्क्ड फॉर, ओनली 70 पैसोज रेज्ड, उसमें से सिर्फ 70 पैसे आए हैं, और जो बाकी के पैसे हैं वो मुझे आप फिर से भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, क्योंकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, लेकिन इसको मुझे मेल के थ्रू मत भेजिए, बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ बंच ऑफ क्रूक्स। जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज हैं उसको इतना ज़्यादा गॉड में भरोसा है कि उसको लगता है कि ये जो पैसे हैं वो जो पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉयज हैं उन लोगों ने, गॉड ने उसको 100 रुपीज़ ही सेंड किया था, और ये जो पोस्ट ऑफिस के जो वर्कर्स हैं उन लोगों ने 30 पैसोज ले लिए हैं और उसको सिर्फ 70 पैसोज दिए। तो उसने बोला कि आप मुझे और पैसा भेजिए, लेकिन पोस्ट ऑफिस के मेल के थ्रू मत भेजिए। और लेंचो यहाँ पे आपकी स्टोरी एंड हो जाती है। तो दिस इज द स्टोरी। ये आपके ये लेंचो का फेथ कितना है गॉड में, ये उस चीज को बताता है। नाउ जो क्वेश्चन आंसर है, जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन आंसर। अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, एक बार डू द रीडिंग, आप खुद भी एक बार इसको रीड करिए और ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ these questions. Now, who does Lencho have complete faith in, and which sentence in the story tell you this? तो are you capable of answering this question? आपको पता है कि किसमें बहुत ज़्यादा faith था, God में faith था, और which sentence in the story tell you this? No one dies of hunger. ये जो स्टोरी है, ये जो लाइन आपके बीच में यूज हुई है, तो इस तरह से आप देखेंगे जब एक बार जस्ट गो थ्रू द क्वेश्चन, और अगर आपको नीड होता है तो जस्ट फ्लिप बैक योर पेजेस और आप देखोगे कि आपको आंसर मिल जाएगा। और इफ यू आर नॉट गेटिंग, जस्ट contact with us, we'll sort out your problem, whatever problem you are having.